Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and enjoying good health while staying at your homes. I, Ma'am Maryam Said, welcome you in our online session. You have already done with Ma'am Tahira Islam in first 4 lectures. Now I am here with our 5th lecture. As you have already read first 2 lessons, now it's time to do a poem of lesson number 2. That is The Solitary Reaper. So today we will be doing the reading and explanation of poem with its question answers, and from English B part we will do present continuous tense. You must be having your books and pencils with you. Okay, the topic of the poem is The Solitary Reaper. Let me explain you the title first. Solitary, it means तन्हा, any one single thing, जो कोई चीज़ अकेली हो. एंड रीपर, रीप का मतलब होता है पक जाना, एंड रीपर मीन्स ऐसा इंसान जो पकी हुई फसल को काटता है. सो द सॉलिटरी रीपर होल टाइटल मीन्स अकेला इंसान जो कोई पकी हुई फसल को काट रहा है. यहाँ पर इस स्टोरी में वो एक गर्ल है. The poem is written by William Wordsworth. Let me tell you about the poet also. William Wordsworth was one of the greatest nature poets that ever lived. He had a great poetic imagination and his observations from nature were always accurate and first hand. इनको poet of nature भी कहा जाता है. Okay, next come to the theme of the poem. The poem is in the form of a ballet, a poem narrating a short story. The poet describes a girl, her song and its impact on his mind. ये poem एक बैले के फॉर्म में है. That means कि एक शॉर्ट स्टोरी इस poem में हमें बयान की गई है. The poet describes a girl. पोइट हमें एक लड़की के बारे में बता रहा है, उसके गाने के बारे में बता रहा है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड, और उसका क्या असर पोइट के दिमाग पे रह जाता है. ये सारी चीज़ें हम इस पोइम में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कम टू वर्ड्स टू नो, देन वी विल स्टार्ट आवर पोइम. नंबर 1 इज़ बिहोल्ड, मीन्स सी, देखना. यॉन, that person over there. Yawn is from old English language, you can say from Shakespearean language. Melancholy means sad, उदास. Profound, having a great depth means बहुत ज़्यादा गहराई वाला. Strain, a short spell of poetry, कोई भी गीत या गाना पोइट्री का कोई भी मिसरे कह लें. Binds means ties, बांधना. Chant, sing, गाना. Haunt, प्लेस, कोई भी रहने की जगह, ठहरने की जगह. हेब्राइड्स, आइलैंड्स नियर ग्रेट ब्रिटेन. ले, सॉन्ग. प्लेंटिव, मॉर्नफुल, प्लेंटिव का भी वही मतलब है सैड, उदास. रीपिंग मीन्स कटिंग. ओके, हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा फ्रॉम द पोएम. यू मस्ट बी हैविंग pencils with you so that you can write difficult meanings on your books. I am going to start the poem. Behold her single in the field, yon solitary highland lass. यहाँ पे poet क्या कह रहा है? Here the poet is addressed to reader. वो कह रहा है देखो वो अकेली लड़की जो खेतों में काम कर रही है. यॉन मीन्स ओवर देयर, वहाँ पर, यानी खेतों में वो काम कर रही है. सॉलिटरी, तन्हा. हाईलैंड लैस, हाईलैंड मीन्स माउंटेनियस एरिया, लैस मीन्स गर्ल. माउंटेनियस एरिया में वो अकेली लड़की खेतों में काम कर रही है, उसे देखो. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो साथ साथ कटिंग कर रही है, साथ साथ गाना गा रही है. बाय हर सेल्फ मीन्स अपने आप में मगन. स्टॉप हेयर और जेंटली पास, या तो उसके पास रुक जाओ खामोशी से या गुजर जाओ. हेयर द पोइट इज़ इंस्ट्रक्टिंग द रीडर नॉट टू डिस्टर्ब द गर्ल, यानी वो कह रहा है कि उस लड़की को डिस्टर्ब ना करो.
या उसके पास खड़े हो जाओ खामोशी से, या चुप करके गुजर जाओ। Alone she cuts and binds the grain. वो बिल्कुल अकेली काट भी रही है और जो ग्रेन्स हैं उनको इकट्ठा भी कर रही है। She is gathering the crops alone and sings a melancholy strain. और साथ साथ वो एक दुख भरा गाना गा रही है। Oh listen for the profound valley. सुनो पूरी की पूरी जो डीप वैली है, प्रोफाउंड मीन्स डीप वैली, उसमें उसका गाना पूरी तरफ उसकी आवाज़ है, हर तरफ वो गूंज रहा है। इस ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, हर तरफ उसी की आवाज़ भर गई है। इज़ इट क्लियर? आई होप यू विल लर्न फ्रॉम इट एंड नाउ कम टू नेक्स्ट पैसेज। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. Here the poet is again making a comparison. The poet is making comparison of a bird, nightingale. Poet कहता है कि किसी nightingale ने, जो कि singing bird होता है, कभी इतना खूबसूरत गाना नहीं गाया। More welcome notes to weary bands. थके हुए ग्रुप्स को वेलकम करने के लिए कभी किसी नाइटिंगेल ने इतना प्यारा गाना नहीं गाया। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, यानी वो ट्रैवलर्स जो थके हुए किसी जगह पर रहने के लिए आते हैं, उनको वेलकम करने के लिए नाइटिंगेल जो सॉन्ग गाती है वो इतना प्यारा नहीं होता जितना प्यारा ये लड़की गा रही है। अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सहराओं में, A voice so thrilling never was heard. इतनी पुरजोश आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी गई। In spring time from the cuckoo bird. यहाँ पे अगेन वो एक बर्ड से कंपैरिजन कर रहा है, दैट इज़ कुकू, कि कुकू बर्ड ने भी इतना प्यारा कभी नहीं गाया, इतना पुरजोश अंदाज में पहले कभी नहीं गाया। Breaking the silence of the seas. Among the farthest Hebrides, यानी कि कुकू बर्ड जो बाहर के मौसम के आने की वेलकमिंग नोट होता है, उसने भी इतना प्यारा नहीं गाया। Now come to paragraph number 3. Will no one tell me what she sings? Here the poet is asking question. क्या मुझे कोई बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow. वो कहते हैं कि शायद वो कोई सैड सॉन्ग गा रही है। नंबर्स हेयर मीन्स सॉन्ग। वो कोई सैड सा उदास गाना गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई पुरानी सी, अनहैप्पी मीन्स ना खुश, फार ऑफ चीज़ों के बारे में, एंड बैटल्स या शायद किसी जंगों के बारे में, लॉन्ग गो यानी पुरानी जंगों के बारे में। और इज़ इट सम मोर हम्बल, या ये कोई सादा गीत है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, कोई रोज़मर्रा मामला भी हो सकता है। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, या कोई फितरत की तरफ से उसको गम मिला है तो उस बारे में वो कोई गाना गा रही है, कोई लॉस और पेन के बारे में। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, वो यही कह रहा है कि ये गाना कोई इस तरह का ही हो सकता है। द पोइट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट पोइट्री, लेकिन उसे ये समझ आ रहा है कि वो कुछ मकामी ज़बान में गा रही है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैव बीन रिटन इन द बॉक्सेस फॉर यू पीपल, यू कैन राइट दैम एज इट इज़ ईजी फॉर यू। जी, नेक्स्ट एंड लास्ट पैसेज इज़ Whatever the theme the maiden sang, वो कहता है जो भी उस चीज़ का थीम है, जो भी उस गाने का थीम है, the maiden sang, maiden means young unmarried girl, वो young unmarried जो अकेली लड़की गा रही है, उसका जो भी थीम है, as if her song could have no ending, जैसे कि उस सॉन्ग की कोई एंडिंग ही ना हो। I saw her singing at work, मैंने उसको देखा है काम पर, यानी काम भी वो करी है, and along with that she is singing, and over the sickle bending,
सिकल मीन्स दरांती, वो दरांती के ऊपर झुकी हुई है। आई लिसन्ड, मैंने उसको सुना है। मोशनलेस एंड स्टिल, यानी मैंने बिल्कुल साकिन होके खड़ा होके उसको सुना है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे ही वो कहता है कि फिर मैं थोड़ी देर उसको सुना, फिर मैं आगे जाने लगा। तो जैसे ही मैं पहाड़ी पे हिल पर आगे चढ़ने लगा, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, तो जो म्यूज़िक मैं पीछे से लेके आया था, जो म्यूज़िक मेरे हार्ट में फिक्स हो गया था, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, वो दोबारा कभी भी नहीं मैंने सुना। लेकिन हेयर द पोइट इज सेइंग दैट वो जो उसने एक दफ़ा सुना था वो अभी भी उस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में महसूस कर सकता है। ओके गर्ल्स, दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोइम. From exercise, we are going to do question answers only. The remaining parts of your work page will be done in next chapter. Now come to question answers. जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय द यूज ऑफ सर्टन वर्ड्स इन द फर्स्ट वर्स द पोइट कन्वेज अ सेंस ऑफ सॉलिट्यूड. विच आर दीज वर्ड्स, यानी वो कौन से वर्ड्स हैं जिससे पोइट हमें तन्हाई का एलिमेंट दे रहे हैं. फर्स्ट वर्स में, फर्स्ट पैराग्राफ आपने देखना है, उसके अंदर ये वर्ड्स थे. सिंगल इन द फील्ड्स, यानी कि बिल्कुल तन्हा वो लड़की है खेतों में. सॉलिटरी अगेन मीन्स तन्हा. बाय हर सेल्फ, हर सेल्फ का भी वही मतलब है जो खुद में है, अकेली, तन्हा. अलोन, तन्हा. मेलनकली, उदास, सैड. क्वेश्चन नंबर बी इज, हु इज़ द पोइट एड्रेसिंग व्हेन ही सेज स्टॉप हियर और जेंटली पास. पोइट किससे कह रहा है कि रुक जाओ या गुजर जाओ. द पोइट इज़ एड्रेसिंग समवन, वो पोइट किसी को भी कह रहा हो सकता है. एनीबडी, शायद कि वहाँ पे कोई खड़ा हो या जाने लगा हो. एनीबडी, पॉसिबली समवन पासिंग दैट वे, यानी कोई भी शख्स हो सकता है वहाँ से गुज़र रहा हो. बाय द फील्ड इन विच द रीपर इज़ एट वर्क, यानी उस फील्ड में से कोई गुज़र रहा हो तो पोइट ने उसे कहा है कि या गुज़र जाओ या खामोशी से रुक जाओ, खड़े रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज़, व्हाट डज द पोइट इमेजिन द रीपर सॉन्ग इज़ अबाउट. पोइट को क्या लगता है कि रीपर का सॉन्ग किस बारे में है. द पोइट डज नॉट नो व्हाट द रीपर इज़ सिंगिंग, पोइट को नहीं पता कि रीपर क्या गा रही है. ही इमेजिन्स इट टू बी अबाउट ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, उसको बस ये इमेजिन ही कर सकता है कि वो शायद किसी ओल्ड मतलब पुरानी, अनहैप्पी, फार ऑफ थिंग्स, या किसी जंग के बारे में गा रही है. और अ सॉन्ग ऑफ एवरी डे अफेयर्स, या कोई रोज़मर्रा के मामलात हैं उनका कोई गाना वो गा रही है. Next question D is, why do you think the nightingale's song is described as welcome and the cuckoo's song is as thrilling. The nightingale's note is described as welcome. Nightingale के note को welcome इसलिए कहा जाता है as it tells travelers of rest and shade ahead, क्योंकि वो थके हुए मुसाफिरों को आगे आने वाले रेस्ट और शेड के बारे में बताता है. द कुकूज सॉन्ग यूजली टेल्स अस, लेकिन कुकू का सॉन्ग हमें अक्सर ये बताता है दैट विंटर इज़ ओवर, कि सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं. एंड दैट स्प्रिंग इज़ अहेड, और बहार का मौसम आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई इज़, हाउ डू वी नो दैट रीपर सॉन्ग इज़ नॉट अ जॉयस वन. हमें कैसे पता लगता है कि रीपर का सॉन्ग एक खुशी वाला नहीं है. विच वर्ड्स इन द पोइम टेल अस दिस, कौन से वर्ड्स हमें ये बताते हैं. We know that Reaper song is not a happy one from the words. Melancholy means udasi, plaintive, sad, old, purana, unhappy, far off things, battles long ago, natural sorrow, loss or pain. All of these words have been explained to you when I read the passage, so it's a very easy one for you to learn. Question F is, how do we know that the Reaper song had a lasting effect on the poet. हमें कैसे पता चलता है कि रीपर का सॉन्ग पोइट के ऊपर एक लास्टिंग इफ़ेक्ट, यानी ना ख़त्म होने वाला इफ़ेक्ट छोड़ जाता है. long after the poet has passed out of earshot of the singer, he can still hear the music in his heart. यानी जब से पोइट ने वो म्यूज़िक सुना है उस लड़की से, तब से वो उस म्यूज़िक को अपने हार्ट में फ़ील कर सकता है.
सो हमें ये पता चलता है कि पोइट के जहन पे कोई लास्टिंग इफ़ेक्ट उस म्यूज़िक ने, उस गाने ने छोड़ दिया है. दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स. Next come to English B part, that is present continuous tense. It is the easiest one. You people have very well aware of this tense. In previous classes you have done it. It's a sort of revision for you. Present continuous tense, as the name is indicating, is the tense which shows us continuity. यानी किसी काम का होना, ज़माना हाल में जारी होना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ. इट मीन्स आई एम डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये बात हो रही है कि मैं ये काम कर रही हूँ. सो इट्स साइन इन उर्दू. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन इन उर्दू. आपको साइन इन उर्दू पता होगा, देन यू कैन ट्रांसलेट एनी टेंस वेरी इजीली. इट्स साइन इन उर्दू इज़. उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है. हेल्पिंग वर्ब. विच हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टेंस? दैट इज एम एंड आर. इज आपका किस किस के साथ यूज होता है? ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. एम आपका यूज होगा आई के साथ. And are will be used with they, we, you and plural subject. Form of verb. Which form of verb is used in present continuous tense? That is first form plus ing. Next comes the sentence formation. The sentence formation is, सबसे पहले you people will write the English of subject. Next helping verb, that is am and are plus first form of verb plus ing. Then last में object. Here are some examples for you. वो ख़त लिख रही है. सबसे पहले किसकी इंग्लिश आनी है? सब्जेक्ट की, दैट इज़ शी. देन हेल्पिंग वर्ब इज़ राइटिंग. राइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, राइट प्लस ing, राइटिंग. देन ऑब्जेक्ट लेटर. शी इज़ राइटिंग अ लेटर. हम चाय पी रहे हैं. वी आर टेकिंग टी. बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है. द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द माउस. हियर आर सम नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो. वो ख़त नहीं लिख रही है. शी इज़ नॉट राइटिंग द लेटर. यू हैव टू सिंपली एड नॉट बिफोर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. यानी शी इज़ के बाद आपने नॉट लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म और ing लगाना है. अम्मी अंडे नहीं उबाल रही हैं. द मदर इज़ नॉट बॉइलिंग एग्स. वो झूठ नहीं बोल रहा है. ही इज़ नॉट टेलिंग अ लाई. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. क्या वो ख़त लिख रही है? इज़ शी राइटिंग अ लेटर? यू नो इट्स इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया, और सवालिया में क्या होता है? आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है. इज़ हमने बाहर लगा दिया. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आर क्या सितारे चमक रहे हैं? आर स्टार्स शाइनिंग. Here comes your homework. Read the poem again carefully. आपने पोइम को दोबारा से अच्छे तरीके से रीड करना है. Learn words to know by heart. और जो words to know मैंने आपको रीड कराए थे, you have to learn them by heart. Learn and write question answers on notebooks. आपने question answers को learn भी करना है and write भी करना है. Neat handwriting में notebooks के ऊपर नोट डाउन कर लेना है. ऑल्सो राइट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑन योर नोटबुक्स. यू हैव टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑन योर नोटबुक्स. ट्रांसलेट द गिवन एक्सरसाइज. ये द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन हेयर, यू हैव टू ट्रांसलेट इट एंड नोट डाउन ऑन योर नीट नोटबुक्स. थैंक यू वेरी मच.